Good morning, everyone. Good morning. How was it yesterday? किसी ने कल का assignment किया? Any experience? किसी ने कोई अपना vision board बनाया? आपने बनाया दीदी? वाह. बनाओ बनाओ दिनेश. It's going to be fun. Vision board along with visualization, affirmation. You know, कोई भी चीज जो बस जो चाहिए ही है ना, एक जो चीज, अगर कोई एक ऐसी चीज है उसके लिए अगर ये दोनों तीनों टेक्निक मिक्स करके अगर हम अप्लाई करते हैं तो कितनी जल्दी वो हमको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते. तो प्लीज गिव इट अ ट्राई. So how many of us are here? 12. हमारी मोर देन हाफ जर्नी हो चुकी है. एनी एक्सपीरियंस? किसी को कुछ शेयर करना है? Hello. Yes. Can you see this? No, I can't seem to see. No, I can't see you. No, my poster. हाँ, yes, I can. Wow. Okay. Wow. Okay. Beautiful. Thanks. Superb. आपका इसमें आपके मैजिक वर्ड्स मिसिंग है शायद. मुंह नहीं लिखे हैं आपने? Oh, I'll write on it. हाँ, वो जरूर लिखो सारे का. उसके बिना तो कोई भी मैजिक बोर्ड अधूरा ही है. हाँ, it's under preparation. ओके, बट अंडर प्रिपरेशन में भी सबसे पहला ही स्टार्टिंग ही आपको उससे करनी है. बट एनीवे, आप जरूर लिखना वो. Yes. बड़ा बड़ा इन बोल्ड लेटर्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एज दो आपकी जो विजन बोर्ड पे जो आपकी विशेस हैं वो एज इफ पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी. Yeah. Yeah. I'll do that. And I want to share some magic with the group. Yes, please, Sarika. We would love to hear. Okay. It's been so many magic. Okay. First of all, my Jijaji means my husband's sister husband. Okay. In his office, 35 people were positive with the Kutta virus, and his this boss was also diagnosed with it. And my sister-in-law called me and told me to please pray that it become negative. I told all this about the book and told her to vision a phone call that it's negative. I told her Okay. at 10 o'clock and 11 o'clock she messaged me in the night that it's negative. Wow. Wonderful, wonderful. So it's all in our mind. अभी हम कितने मैजिकली इन चीजों को यूज कर लेते हैं हमारी हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, हमारे ओवरऑल दिन के लिए. हम किस तरीके से हमारे दिन को भी, पूरे दिन को हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग हम
किस तरीके से हमारे दिन को आगे जो पूरे 24 घंटे हैं उसको कैसे हम अपने ही कंट्रोल में लेकर और जैसा हम चाहें वैसा हम बना सकते हैं, वही आज के चैप्टर में इनफैक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इफ एनीवन कुड वॉलंटियर दैट विल बी नाइस. सो शायद 2 दिन कृतिका के लिए आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आज और कल, बिकॉज शी इज मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. तो उसके लिए थोड़ा सा शायद मैनेजेबल नहीं हो पाएगा अभी 1 और 2 दिन शायद प्रोबेबली. तो प्लीज बेयर विद अस. मीनवाइल अगर आप में से कोई वॉलंटियर करके रीड कर सकता है दैट विल बी रियली नाइस. I can read today. Yes, please, Sarika. Can you, everyone can hear me clearly? Yes, absolutely. Okay, I have the book. I will read from the book, or I have to share the book with everyone. A PDF, so I'll share. Wait, no, PDF. I have the PDF. You have the PDF, then you share it. I'm using it from mobile, so let's see. Chapter 14? Yes, chapter 14, have a magical day. Only the host can share this in this meeting. You share it, I will read from my mobile. Okay, just a moment. Meanwhile, I want to share some more magic. I was getting something from Amazon or Milk Basket nowadays. So I thought, why not ask daily for it? So I got knife, a pickle of 280 rupees. Then yesterday, 550 rupees under chef basket. So these are all I got till now. Okay. Without paying it. Wow. Just a moment, Sarika. 1 second. Yeah. Yeah. Chapter 14. Thank you, Dinesh. Chapter 14. The intention compressed into words and full magical power. Deepak Chopra, the 1946 medical doctor and writer. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. Should I continue? Yeah. Read the entire paragraph, Sarika. Okay. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your life is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. So, आज का जो चैप्टर है वो रोंडा ने पूरा आपको दिन को मैजिकल बनाने का तरीका बताया है. वो आप कैसे कर सकते हैं तो आपका दिन पूरा मैजिकल जाए, उसके लिए आप पूरा दिन कैसे कैसे हम पहले से ही उस दिन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं. हम उसको जीने से पहले ही, उस दिन को पूरा होने से पहले ही अगर हम उसके लिए थैंकफुल हो लें तो किस तरीके से हमारा दिन जो है वो पूरा मैजिकल हो सकता है, उसका आज हम बात करने वाले हैं और उसके बारे में उसके तरीका सीखेंगे.
तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे इमेजिन करना है, अपना एक बिलीफ बनाना है एज इफ आपका वो दिन ऑलरेडी आपने जी लिया है, ऑलरेडी आज का दिन आपका हो चुका है और बहुत ही अच्छा जा रहा है आपका दिन, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है। इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप उसको इमेजिन करिए, उसके सर्कमस्टांसेस को पहले से ही, जो आज आपके होने वाले हैं। अगर आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी से मीटिंग है, कुछ आपका कोई कोई आने वाला है, कोई कोई इम्पोर्टेंट ईमेल है, कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, कुछ भी है, वो आप पहले से ही इमेजिन कर लीजिए अपने मन में कि हाँ ऐसा हो गया है और बहुत अच्छे से हो गया है, एंड यू आर रियली रियली ग्रेटफुल अबाउट इट, यू आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल अबाउट इट। क्योंकि अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस के लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाएंगे तो उसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि एक्चुअल में भी वही आप एक्सपीरियंसेस फील करेंगे। सो आप ये ट्राई करके जरूर देखिएगा किस तरीके से आगे और क्या करना है, वो हम आगे बढ़ते हैं। सारिका, Sarika, are you there? Hello. Yeah. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about the time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. So, अगर आपको इस चीज की पावर में बिलीफ नहीं है कि किस तरीके से आप अपने पूरा दिन के सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, शुरू में ऑलरेडी हुए बिना ही अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपको इस चीज में अभी बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप सोच के देखिए किसी दिन आप बहुत ही इरिटेटेड मूड में या बहुत ही खराब मूड में आप उठते हैं, तो आपके साथ उस दिन क्या होता है। आप उस दिन नोटिस करेंगे कि एक के बाद चीजें एक्चुअली में खराब होती चली जाती है। आप पूरा दिन उस दिन इतना खराब जाता है आपका, जबकि नथिंग ग्रेट एज सच कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी क्योंकि आप उठे ही खराब मूड से हैं तो आपका पूरा दिन भी खराब जाता है, ऑटोमेटिकली ऐसा ही हो जाता है। तो उसका पूरा एक रीजन अगर हम फिगर आउट करने की कोशिश करें तो वो ये निकल के आता है कि आपकी जो मॉर्निंग है, शुरुआत जो है आपके दिन की, वो ही खराब थी। शुरुआत अगर हमको कैसी करनी चाहिए, जो हम कर भी रहे हैं अभी काउंट योर ब्लेसिंग से, वो है ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से। अगर हम उससे अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ऑलरेडी ये फील करने लग जाते हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी सो एंड सो चीज, XYZ चीज ऑलरेडी हो गई है, बहुत अच्छे से हो गई है, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेजेस दे देते हैं। ऑलरेडी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बुद्धू है, उसको नहीं समझ में आता कि ये चीज एक्चुअली में हो चुकी है या नहीं, हम उसको ऑलरेडी सिग्नल्स दे देते हैं कि ये चीज हो गई है एंड यू आर रियली थैंकफुल फॉर इट। तो हम उसको ट्रिक कर देते हैं, हम उसको ये कह के ट्रिक कर देते हैं कि ये तो ऑलरेडी हो गई है एंड यू आर थैंकफुल फॉर दैट। तो एक्चुअल में भी वही चीज आपके साथ होगी फिर। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to the sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. So, हम जब सुबह किसी खराब मूड से उठते हैं तो वो भी कोई एक्सीडेंटली नहीं होता है, वो भी उसके पीछे भी रीजन ये होता है कि आप कुछ ना कुछ किसी नेगेटिव थॉट, किसी नेगेटिव इमोशन, किसी नेगेटिव बात को सोचकर रात में सोए हैं, जिसकी वजह से आपका
जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो किसी ना किसी खराब मूड से स्टार्ट होती है। आप या तो बहुत इरिटेबल होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, आप यू नो आपका मन नहीं लगता है, आप बस मूड ऑफ होता है आपका, आपको भी पता नहीं होता है कि क्यों ऑफ है, बट ऑफ है, आपको रियलाइज नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे कि रात में मैं क्या थॉट्स लेकर सोई थी या सोया था, तब आपको शायद रियलाइज हो सकता है। और इसी वजह से रोंडा ने डे 1 से हमको ये प्रैक्टिस दे रखी है, रात में सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जिससे हमें ये फायदा होता है कि रात में सोने से पहले हम ऐसे थॉट्स, इतने अच्छे थॉट्स जो हमारा पूरा दिन भर में अच्छी चीजें हुई, उन थॉट्स को अगर हम लेकर रात में सो रहे हैं तो हम अच्छी नींद लेकर सो रहे हैं, अच्छी नींद हमारी आएगी और हमारी जो सुबह है जब हम उठेंगे तो वो एक अच्छे मूड से, एक पॉजिटिव मूड से उठेंगे हर दिन। और जो दूसरी हम प्रैक्टिस एवरीडे करते आ रहे हैं वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो वो गारंटी कर देता है कि हमारी पूरा दिन अच्छा जाए। तो ये दोनों प्रैक्टिसेस मिलाकर अगर जब हम इसको रेगुलरली अपनी लाइफ में करते हैं तो ना सिर्फ हम हमारी रात अच्छी कर रहे हैं, जिससे हम जो हमें चैन की नींद चाहिए होती है, जिससे हम सुबह फ्रेश उठ सकें, सुबह अच्छे मूड से उठ सकें, और मॉर्निंग भी पूरा दिन भर भी हमारा अच्छा जाए, एक हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके रखें। तो उसके पीछे के जो जो गारंटर्स हैं वो ये दोनों प्रैक्टिसेस हैं। इसकी वजह से ही ये दो प्रैक्टिसेस हैं जो पूरे 28 डेज रोंडा ने आपको रेकमेंड करी हैं। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. आपको रोंडा ये कहना चाह रही है कि अगर आपको अच्छा फील करना है तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है आपको बताने का कि आप इंस्टेंटली, अगर आपका मूड आपको अपलिफ्ट करना है, आपको बेटर करना है, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड की जोन में रहना, आभार देना उस पर्टिकुलर दिन को, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बेटर फील कराने का। Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words, thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily list of the things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having going well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. आज आपको क्या करना है, आज आपके जो भी प्लान्स है पूरे दिन भर में, चाहे वो कुछ ट्रैवल करना हो, कहीं पे किसी के साथ कहीं जाना हो, कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई वर्क का कोई प्रोजेक्ट है, आपका लंच है किसी के साथ, कुछ आपकी आपके कोई एक्सरसाइजेस के कुछ प्लान्स हैं, आपका कहीं ड्राई क्लीन में आपको कुछ देना है, कोई स्पोर्ट है, कोई थिएटर में कहीं जाना है, कोई फ्रेंड से मिलना है, योगा क्लास है, आपके घर को कुछ पर्टिकुलर क्लीनिंग करना है, आपको स्कूल जाना है, ग्रोसरी बाय करना है, जो भी आज आपके प्लान्स हैं, आज आप उनको मैजिकल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? थैंक यू बोलकर, एज इफ आपको ऐसे आपको मन में फीलिंग्स लानी है एज इफ वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है आज और बहुत ही अच्छी गई है, आपने जी ही नहीं है उस चीज को, आपने उस चीज को आज एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक, लेकिन आपको ऐसे सोचना है एज इफ आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है और वो बहुत अच्छा गया है और आप उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। अगर आप सारी चीजें का अगर कोई आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उस टू डू लिस्ट बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आप उसको सामने रखकर और आप उसको देखकर आप ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि ये आपकी टू डू लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एक एक टास्क के बारे में सोच के आप उसके लिए थैंकफुल होइए, आप प्रिटेंड करिए एज इफ कि वो चीज बहुत अच्छी हो गई है, जो जितनी अच्छी वो हो सकती थी, राइट?
आप चाहे तो उसको पेपर पे भी लिख सकते हैं इस अपनी फीलिंग को, या फिर आप इस चीज को बस माइंड में भी इस चीज को कर सकते हैं कि ये आपकी हो गई है एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट। यस सारिका। सारिका। Hello. या सारिका। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy day smooths out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them. And things seems to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. जब आप ग्रेटिट्यूड की इस मैजिकल प्रैक्टिस को टाइम से पहले ही आप इसको यूज करने लग जाते हैं, जो हमारी हैव अ मैजिकल डे प्रैक्टिस है, तो जो ना सिर्फ ये आपको एक एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगी आपका पूरा दिन के लिए, बल्कि जो अनएक्सपेक्टेड छोटी छोटी इश्यूज हो जाते हैं दिन भर में, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दिन भर में या डिफिकल्टीज आ जाती हैं, आप उनको भी ऑलरेडी रिमूव कर देंगे, आने से पहले ही आप उनको हटा देंगे कि वो आएंगी ही नहीं। आप इस मैजिकल प्रैक्टिस को यूज करके अपना अपने ना सिर्फ आज को बल्कि कल को आने वाले और दिनों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो छोटे छोटे हर्डल्स लाइफ में आते हैं, जो एवरी डे हमारी लाइफ में आते हैं, अगर आप इस प्रैक्टिस को एवरी डे करते हैं तो वो एकदम कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलता है। तो कोई भी खराब दिन जहाँ पर थोड़े लाइफ में डिफिकल्ट डेज आते हैं सबकी लाइफ में, या आप कभी किसी दिन ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी सिचुएशन को लेके, या कुछ कुछ परेशान है, किसी किसी चीज की परेशानी हो रही है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में मैजिकल फ्लो लाने का ये बहुत अच्छा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एफर्ट कम डालना है इसमें, आपको कुछ बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ माइंड में पिक्चराइज करना है एज इफ वो ऑलरेडी चीज हो चुकी है। आपको स्ट्रेस कुछ भी नहीं देना है, बस आपको जो सोचना है, आपको जो खुशियां मिलेंगी वो सिर्फ इसी चीज से मिल जाएंगी अगर आप उसको ऑलरेडी ग्रेटफुल फील करने लग जाएंगे उसके लिए। Hello, can you hear me? या आई कैन। Okay. When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic word, thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. जब मैंने ये ग्रेटिट्यूड का मतलब रोंडा कह रही है कि जब उसने ग्रेटिट्यूड का ये मैजिकल पावर को यूज करना स्टार्ट किया तो उस
ओके, मैं फिर से ये वाला, आई एम सॉरी, सो मैं फिर से ये वाला पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि जब उसने ये ग्रेटिट्यूड की मैजिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करना, यूज करना स्टार्ट किया, जहां पर उसको टाइम से पहले ही थैंक यू बोलना था अपने आने वाले दिन के इवेंट्स के लिए, तब उसने एक इवेंट जो, जैसे वो एक सुपरमार्केट जाना वाला एक इवेंट होता था जहां पर उसको ग्रोसरी लेने जाना होता था, वो उसको एंजॉय नहीं करती थी कभी भी, उसको अच्छा नहीं लगता था ग्रोसरी लेकर आना सुपरमार्केट से। लेकिन जब उसने इसको स्टार्ट किया, इस मैजिक प्रैक्टिस को, तो उसने किस तरीके से स्टार्ट किया, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। मतलब उसने पहले ही अपने सुपरमार्केट जो उसको जाना था उसके ट्रिप को इजी, उसका बहुत इजी था, बहुत स्मूथ था, बहुत हंसी खुशी से वो अपना सामान वहां से लेकर आ गई, ऐसा उसने उसको बोलकर थैंक यू फील करा उसके लिए। और उसको अंदाजा भी नहीं हुआ कि एक्चुअल में भी, रियल में भी कब उसका ये सुपरमार्केट वाला जो उसका ट्रिप था वो एकदम इजी और जॉयफुल हो गया। तो ये उसका इवेंचुअली उसका आउटकम था जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाई। हेलो, ये सारिका। everyone can hear? Sarika, are you there? Sarika, unmute yourself, please. The results, everyone can hear? Okay. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends, one friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked and what I needed was magically in front of my eyes. Everything Sarika, are was you in there? Sarika, we can't hear you. Hello. दीदी वी कैन हियर हर। आई थिंक आपको नहीं आ रही आवाज। मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है? Now I stopped speaking maybe. Hello. I think I'll have to join the meeting again. I'll just leave and join again. मुझे आवाज नहीं आ रही है क्योंकि किसी की भी। Okay. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Sarika. Okay. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend haven't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical.
सो रोंडा ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसका सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, किस तरीके से जब उसने सुपरमार्केट जाने से पहले ही उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करा था कि किस तरीके से उसका इजी हो जाए, उसका ट्रिप जॉयफुल हो जाए। तो उसके साथ क्या हुआ वो अपन पढ़ते हैं कि जब उसने ये किया तो सबसे पहले तो उसको वहां पे पार्किंग की इजीली स्पेस मिल गई, बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही उसको पार्किंग की स्पेस मिल गई। जब वो जैसे ही एंटर हुई उसको उसकी 2 फ्रेंड्स मिल गई, एक फ्रेंड जिससे वो बहुत टाइम से मिली नहीं थी, एंड इनफैक्ट शॉपिंग करने के बाद उसने उसके साथ लंच भी किया। जिस फ्रेंड के जो दूसरी फ्रेंड थी उसने उसको एक बहुत ही अच्छी हाउस क्लीनर के बारे में बताया, जिसको वो बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। रोंडा बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ऐसी हाउस क्लीनर मिल जाए। सो दोनों फ्रेंड से उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। उसके बाद जब वो शॉपिंग करने लगी अंदर, तो जहां वो जो चीज देख रही थी वहां उसको चीज चाहिए थी, उसकी लिस्ट में जो सामान की लिस्ट थी वो उसको इमीडिएटली मिलती जा रही थी, एज दो उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तक भी नहीं करने पड़ रहे थे। सब कुछ स्टॉक में अवेलेबल था, सब कुछ काफी चीजें उसको डिस्काउंट में मिल रही थी। जब वो उसने चेकआउट के लिए अप्रोच किया, वो काउंटर पे जाने लगी चेकआउट करने के लिए, तब उसने देखा कि कितनी जल्दी उसने चेकआउट कर रही है, कितनी जल्दी उसका सारा काम हो गया। इनफैक्ट एक नया बिलिंग काउंटर जैसे ही वो लाइन में लगने लगी, क्यू में खड़ी हुई, उसको वहां पर एक नया पेमेंट काउंटर ओपन कर दिया गया, और उसने जो वहां पर पेमेंट काउंटर पे जो पर्सन था उसने उसको सिग्नल किया कि आप इधर आ जाइए। दैट मीन्स कि उससे लाइन शुरू होने लग गई, और उसने रियलाइज किया कि वहां पर भी उसको एक कितना बड़ा एडवांटेज मिल गया। जैसे ही वो उसकी बिलिंग करने लगा पर्सन, तो उसने उससे बाय चांस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बैटरीज भी चाहिए। तो सडनली उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे बैटरीज चाहिए थी, और वो ही एक इकलौती चीज थी जो मैं लेना भूल भी गई थी। सो उसको वो भी चीज उसके लिए हो गई। तो ओवरऑल उसका जो ट्रिप था वो उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना इजी और इतना जॉयफुल उसका ट्रिप हो जाएगा, इतना मैजिकल इनफैक्ट उसका ये ट्रिप हो जाएगा, सिर्फ एक छोटी सी एक ग्रेटिट्यूड की एक प्रैक्टिस करने से। It only takes a few minutes in the morning to use a gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. सो ग्रेटिट्यूड की एक छोटी सी प्रैक्टिस कुछ ही मिनट्स लगाती है, इससे ज्यादा हमको टाइम नहीं लगता है हमारे पूरे दिन के बारे में सोचने के लिए, लेकिन इतनी एक छोटी सी प्रैक्टिस आपका पूरा दिन किस तरीके से बदल सकती है वो आज आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of the bed or while you are showering or getting dressed. Think about your plans for the day and give thanks for each one of them going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening. Scroll down, please. Until bedtime. With each plan or event, say the magical words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. सो आपका दिन मैजिकल जाए उसके लिए आपको ये मैजिकल प्रैक्टिस आपके दिन की शुरुआत से ही करनी है। या तो आप जैसे ही बेड से निकले तब से अगर आप शुरुआत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज तो हम ऑलरेडी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेशन के बाद से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या आप जब शावर ले रहे हैं तब कर सकते हैं, आप तैयार हो रहे हैं तब कर सकते हैं। बेसिकली आपको दिन आपकी सुबह में जितना जल्दी पॉसिबल है आपको उतना जल्दी हर पूरे दिन भर के मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून, आपका जो शाम का वक्त है, रात का जो समय है, रात में सोने से पहले तक का जो टाइम है, आपको पूरा दिन भर के लिए आपको एक इमेजिन करके रखना है, एक एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि ये इवेंट्स आज आपके होने वाले हैं,
और आपको उनके लिए थैंकफुल फील करना है, एज दो वो ऑलरेडी हो गए हैं, एज इफ वो ऑलरेडी होके बहुत अच्छे हो गए हैं इनफैक्ट, और आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. So उसमें आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से आप इसमें ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जैसे कि उसमें एग्जांपल्स दिए हैं. थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, मतलब बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग एक मेरी मीटिंग गई, उसके लिए थैंक यू. बहुत ही अमेजिंग मेरा एक आउटकम गया एक फोन कॉल पे, उसके लिए थैंक यू. मेरा आज का दिन वर्क पे वन ऑफ द बेस्ट डेज रहा है, उसके लिए थैंक यू. एक बहुत ही थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम जो भी वो आप खेलते हैं, अगर कुछ करते हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए थैंक यू. आपका पूरा दिन एक बहुत बिना किसी टायरिंग के, बिना किसी एफर्ट डाले और बहुत अच्छे से आपका दिन, जो आपको क्लीनिंग करनी थी अपने घर में या ऑफिस में, वो बहुत अच्छे से गया, उसके लिए थैंक यू. अपने फ्रेंड्स के साथ में एक जो आपने प्लान बनाया था कहीं बाहर जाने का, वो बहुत अच्छा गया, उसके लिए थैंक यू. आपका जो ट्रैवलिंग का आज का प्लान था वो बहुत अच्छा रिलैक्सिंग दिन था, उसके लिए थैंक यू. आप में बहुत अमेजिंग एनर्जी थी जब आपकी एक्सरसाइज का आपने एक टाइम अलॉट किया था अपने आप के लिए, और वो किया, वो बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा था, उसके लिए थैंक यू. थैंक यू उस फैमिली गेट टुगेदर के लिए जो अब तक का सबसे बेस्ट फैमिली गेट टुगेदर हुआ है. तो इस तरीके से रोंडा ने कुछ हमको एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आप भी अपनी डेली लाइफ में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप थैंकफुल फील कर सकते हैं और उसको बेटर बना सकते हैं. This magical practice is more powerful if you can say the magic words. Thank you out loud. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. तो ये मैजिकल प्रैक्टिस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है अगर आप जो मैजिक वर्ड्स हैं थैंक यू वो आप जोर से बोलते हैं, तो एम्फसाइज देके फीलिंग्स के साथ जोर से बोलते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं. बट अगर आपको लगता है आप नहीं बोल सकते हैं, ये पोजीशन में नहीं है कि आप वो बोल सके, तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर माइंड में बोल लीजिए. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, and the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. So, जब आप ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करना फिनिश कर लेंगे हर टास्क के लिए, हर इवेंट के लिए, और अपने दिन को अपनी इस प्रैक्टिस को एंड करेंगे ये बोलकर, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी, जो ग्रेट न्यूज मुझे आने वाली है, जो मुझे आ रही है, मिल रही है, उसके लिए थैंकफुल अगर आप होना स्टार्ट कर देंगे तो विदाउट फेल, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो चीज नहीं हो. हर मॉर्निंग जब भी आप ये ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करेंगे
तो आप साथ में ये भी बोलेंगे कि जो ग्रेट न्यूज आपके पास आ रही है उसके लिए थैंक यू। इससे क्या होगा, इससे आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कितनी कितनी छोटी से लेके कितनी बड़ी बड़ी ग्रेट न्यूज आप दिन भर में, हर दिन, हर वीक, हर महीना, हर साल आपको लगेगा कि कितनी अमेजिंग न्यूज आपको सुनने को मिल रही है। कुछ जैसे होता है ना, हम किसी को बोलते हैं वाह व्हाट अ ग्रेट न्यूज हमें सुनने को मिली है, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल रहे हैं, जिसकी वजह से वो आज हमें रिजल्ट मिल रहा है। हमने कहीं ना कहीं उसको पहले ही इमेजिन करके उसको थैंकफुल फील करा है। आप खुद सोचिएगा इस बारे में, कभी आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि बात कितनी ट्रू है। और आगे जिंदगी भर भी आप इस प्रैक्टिस को यूज करके आप उस जो आपकी ग्रेट न्यूज है जो आपको मिलने वाली है, वो आप इसको यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू so much, Sarika, for reading the chapter for all of us. I'll quickly repeat what you are supposed to do today. आज आपको, आई होप आप लोग सब अपनी ब्लेसिंग्स लिख कर आए होंगे, 10 ब्लेसिंग्स, जहां पर आपने उनको वापस से एक बार पढ़ के सबके लिए दिल से थैंक यू फील किया होगा। एंड देन आज आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ही, इस सेशन के जस्ट बाद से ही अगर पॉसिबल है तो प्लीज अभी कर लीजिए, कि आपको आज आपके पूरे दिन भर के जो माइंड में आपके प्लान्स हैं, जो आपको आज पूरा दिन भर में करना है, चाहे अपने ऑफिस तक पहुंचना ही क्यों ना हो, आप अगर ऑफिस तक भी जा रहे हैं तो आप ये इमेजिन करके जाइए कि आप बहुत आसानी से, बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी जल्दबाजी में आप आराम से ऑफिस पहुंच गए हैं, टाइमली पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से आप पूरा दिन भर के इवेंट्स को आप प्लान करके आप ऑलरेडी मैजिक वर्ड्स उनको बोलेंगे, ऑलरेडी हो गया है ऐसा फील करके मैजिक वर्ड्स बोलेंगे थैंक यू, कि वो बहुत अच्छा हो गया है। और सारे आप इवेंट्स को इमेजिन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइन बोलनी है, एक मैजिकल लाइन बोलनी है, बेसिकली थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। जो आज आप ऑलरेडी थैंकफुल हो रहे हैं उस ग्रेट न्यूज के लिए जो आज आपके पास आने वाली है। ठीक है, रात में सोने से पहले आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। आपको आज रीजन भी पता लग गया है कि क्यों हम मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं हर रात में, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ में ग्रैटिट्यूड की जोन में हम सोए। ठीक है, तो आप वो करना मत भूलिए। पूरे दिन भर को स्कैन करके एक बेस्ट चीज निकालिए और उसके लिए दिल से कृतज्ञ होइए, दिल से थैंकफुल हो जाइए। Thank you so much everyone for being here and for listening to me. Thank you so much. Any questions, any doubts, any experiences? Please share. Hello. Yes. Hi, Aksari. Good morning, everyone. Good morning. I had a query. We chose our top 10 desires yesterday. So, can we also take a time frame for it to get completed? वो आगे टास्क आएगा, अभी थोड़े टाइम में आएगा, वो आगे क्या करना है आपको उसका। तो अभी जितना उसमें लिखा था आप उतना करो, फिर आगे अभी आपको पता लग जाएगा आगे उसका क्या करना है। Okay, thank you. Okay, most welcome. Also, I wanted to share one thing. Yes, please. As I guess 3-4 days before you told about Brahm Muhurat and all, how effective it is to wake up during Brahm Muhurat. So I searched a little more about it, and from past 3 days, I have been waking up in the Brahm Muhurat, wow, doing my meditation. Super! It's a big achievement, Sakshi. I haven't ever woke up in achievement. My mom has been telling this to me since I was a child, that one should wake up in Brahm Muhurat. One should wake up in Brahm Muhurat. And even no alarm could wake me up, neither mom. And I have been waking up in Brahm Muhurat since 3 days without alarm. Wow. I just think that I have to wake up in Brahm Muhurat, and automatically my eyes open up and I do my meditation, and that has been so effective. Super. I get such a positive start for my day. So thank you so much. Super. Sakshi, what exactly do you do? वो आप मुझे बताओ, वो शेयर करो प्लीज। आप जैसे आपकी आंखें खुली, what do you do exactly? आप क्या करते हो पूरा ब्रह्म मुहूर्त?
I leave bed because वो सबसे मुश्किल होता है उठते ही कि एक बार अगर आप एक वो आलस सा आता है कि नहीं वापस सो जाते हैं, तो सबसे पहले I leave bed immediately, then I take bath as ताकि वो नींद वाला वो मतलब ऐसे चला जाए, आप पूरा एकदम फ्रेशन अप हो जाओ. Then उसके बाद I worship God for 20 to 25 minutes. Then I do meditation. There are some audios available on YouTube for meditation and all. So I plug in my earphones, listen to that, and just go into that deep. I just feel that vibration, and it feels so good. It makes me feel so peaceful and so energetic throughout the day. So super. Yeah, it helps a lot. और रात में कितने बजे सो रही हो फिर? Max to max it gets 11, but yeah, I try my best that I sleep by 10:30 last. नहीं, it should be 10 last. अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो तो try and sleep by 9. 9 बजे नहीं हो रहा है तो 10 तो last है. Yeah, maximum 10 ही last हो रहा है, but like only yesterday it happened to be 11. So, but because क्या होता है, I'll tell you. Sleep by 10 anyhow. I'll tell you what, 9 से 12 का जो टाइम होता है ना सोने का, अगर हम 9 बजे सो जाते हैं, 9 से 12 जो 3 घंटे का टाइम होता है, वो एक्चुअली में 6 घंटे की स्लीप होती है हमारी. 6 घंटे की नींद मिल जाती है हमें. और फिर 12 से 3 अगर हम सो रहे हैं तो 1-1 घंटे की हमें नींद मिल रही है. तो 6 और 3 9 घंटे हम सो रहे हैं बेसिकली. हमारी बायोलॉजिकल साइकिल ऐसी होती है कि 9 से 12 के बीच में अगर हम सो जाते हैं तो वो 3 घंटे की जगह हमें 6 घंटे की नींद देती है. और जो फिर वो 12 से 3 हम सो रहे हैं वो हमें 1 घंटा नींद 1 घंटे के बराबर की होती है. तो 12 से 3 हमें 3 घंटे की नींद मिल रही है. ओवरऑल हमें 6 + 3 9 घंटे की नींद मिलती है. तो हम इतने फ्रेश रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती. हाँ, लेकिन शुरू के दिनों में हमें लगता है कि बहुत नींद आ रही है दिन में, मेरे ख्याल से 12 बजते दिन के 11 या 12 बजते हम एकदम स्लीपी हो जाते हैं, वापस नींद आने लग जाती है. लेकिन उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है. हाँ, इट हैपेंस विद एवरीवन. जब मैं मैंने ये करना स्टार्ट किया था मेरे साथ. By 9:30 I definitely try to sleep by 9:30. तो वो एक ऐसा टाइम है, वो 11-12 बजे का टाइम जब वापस से बहुत तेज नींद आने लग जाती है, तो वो ऐसा टाइम है जब आप किसी अपने आप को ऐसे काम में एंगेज कर लो जहां पर सोने का सवाल ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं कि आपको सोना हो उस टाइम पे. अदरवाइज अगर वो दिन में नैप ले लिया तो फिर वही रात में टाइम पे नींद नहीं आएगी. So it's very important. I don't take nap at that time also. I go to eat lunch. So that I don't. And Sakshi, what do you do, Sakshi? I'm an advocate by profession, basically. Okay. So one thing also I'll suggest you ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए कि I don't know अभी if you are practicing right now during this situation or not, बट आप इसको कैसे अपने प्रोफेशन में अपने अगर आप लोग कोई भी बिजनेस में है या कोई जॉब में है, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में है, जैसा साक्षी एडवोकेट है, तो आपका जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, आपका कोई क्लाइंट है, तो ब्रह्म मुहूर्त को यूज करिए उस पर्टिकुलर जो भी आप आपका जैसे कोई केस चल रहा है तो उसके अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिल रहा है, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि क्या मेरा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये एक वो टाइम होता है जहां पर आप अपने हर क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं. ये तो हो गया एक बहुत स्पेसिफिक एरिया. आप इवन अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं या फिर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इन सब का आपको एक आंसर मिल सकता है यूनिवर्स से. इनफैक्ट कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान एक एक अर्थ के, एक धरती के ट्रिप पे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में. वो उस टाइम धरती का एक भ्रमण कर रहे होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में. तो हम उस टाइम उनसे जो मांगे ना वो ऐसे बोल देते हैं तथास्तु, जा तुझे मिल जाएगा. तो हमारा अगर उस टाइम पे किसी चीज को लेके बिलीफ स्ट्रांग है, हम मेंटली अगर ये जो मैजिकल प्रैक्टिसेस हम पढ़ते आ रहे हैं इनको यूज करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम इनको यूज कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को,
तो आप देखेंगे कैसे चुटकियों में वो आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को एक इतनी बड़ी चीज बहुत चाहिए थी, किसी भी तरीके से डेस्परेटली चाहिए थी, और वो मैंने सिर्फ यूज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक पावरफुल जैसे टूल था मेरे हाथ में, मैंने वो टूल यूज करके उसी टाइम पे उसको मैनिफेस्ट किया था और मुझे वो चीज मिल गई। वो इतनी बड़ी चीज थी कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी इतनी जल्दी मिल सकती है। विद इन अ मंथ मुझे वो चीज मिल गई एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल। 2-3 चीजें अगर आप कंबाइन करके, क्योंकि आप उठ पा रहे हो, दैट्स वेरी वेरी कमेंडेबल साक्षी, दैट्स सुपर्ब। आई मस्ट टेल यू कि ये करना आसान नहीं होता है जितना सुनना आसान होता है, और वो भी कंसिस्टेंटली। एक दिन चलो कोई जोश में उठ गया बट कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन करना even I'm surprised. Yes, very nice. Even I'm so that's why I didn't share this since last 2 days. I wanted it to be consistent at least for 3-4 days continuously, and it did happen. बट जब रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं ना तो अपने आप आपको लगता है अरे वाह यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसको तो मुझे करना ही चाहिए। तो मजा आ जाता है। I wish I could be able to do this forever. I mean, it makes me feel so good. Wish, hope. Yes, no. I will do it. You are doing it. I will do it. You are doing it. And you are already grateful about it. Be thankful that you are able to do it. Yeah, I daily write it in Thank you so much. I daily take this one as my blessing. Very nice. But utilize this time, क्योंकि ये बहुत limited time होता है। तो जितना भी creative काम है, जितना भी चाहे वो meditation हो, exercise हो, going for a walk, या फिर जैसे जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, या जो लोग लिखते हैं, राइटर्स होते हैं, या फिर कोई कुछ किसी का म्यूजिक बनाने का काम है, उन लोगों के लिए तो ये इट्स अ बून। उनके लिए तो इससे अच्छा कोई टाइम होता ही नहीं है ये सब क्रिएट करने का। बहुत ही सुपर्ब टाइम होता है उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाना और इवेंचुअली उसको मैनिफेस्ट कर लेना, क्योंकि वो हमारा एक मी टाइम होता है ना। हमें उस टाइम किसी के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाना है, या किसी का कोई फोन कॉल अटेंड करना है, कोई व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं। एंड स्पेशली एक चीज मैं बताना भूल गई साक्षी, डोंट यूज योर फोन दैट टाइम। अगर आप मेडिटेशन वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो प्लीज आप उनको पहले ही डाउनलोड करके रख लो। यूट्यूब पे भी है ना, तो आप उनको डाउनलोड करके रख लो पहले ही, और आपका जो फोन में आप एयरप्लेन मोड पे रखो उस टाइम पे फोन को। डोंट यूज योर फोन एट ऑल। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो ईमेल्स, नो फोन कॉल्स, नथिंग। ये फोन तो बिल्कुल यूज मत करना। आपको सिर्फ मेडिटेशन वीडियोस देखने के लिए अगर करना है तो आप वीडियोस को पहले ही डाउनलोड करके फोन को एयरप्लेन मोड पे करके देन आप फोन को यूज करो। वो भी अगर कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो। Sure. दूसरा, यू कैन डू योर सेल्फ लव ऑल्सो। यू नो व्हाट इज सेल्फ लव? Sorry, I can't hear you. You can't hear me? सेल्फ लव वाला सेशन अभी थोड़ा एक बार करेंगे एंड देन हाँ, हम इस बारे में अच्छे से बात करते हैं। सेल्फ लव के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज ऑलरेडी इट्स 7:10, so but again thank you so much Sakshi, it was really wonderful speaking to you, and please continue doing it. You will get amazing results, I'm sure. There's one thing I want to say today. Thank you. कुछ लोग ना affirmations में confuse हो जाते हैं and they use words like debt free, pain free. तो please दीदी, can you एक बार go through this thing once? ये जो negative words के साथ आप free या ऐसे वर्ड्स लगा देते हो, इट्स नॉट राइट थिंग। मैंने पहले भी अभी एक्सप्लेन किया था। हाँ श्योर। तो मैंने जैसे आप किसी बॉडी के किसी कहीं पे आपका पेन है, आपके बैक में पेन है, तो आप अगर अफर्मेशंस लिख रहे हैं कि थैंक यू दैट आई डू नॉट हैव एनी पेन इन माय बैक एनी मोर, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो इवेंचुअली आप अपने बैक पेन को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप और अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पेन वर्ड आपको लिखना ही नहीं है। नो पेन, लेस पेन, पेन फ्री, डेट फ्री, ये वर्ड्स, ये नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स में काउंट होते हैं। ये आपको लिखने ही नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे तो आप यही और अट्रैक्ट करेंगे। आपको इनका ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप अफर्मेशंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं
या whatever, आप इवन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने अफर्मेशंस को और उनको रिपीटेडली सुन भी सकते हैं। तो उसमें जो वर्ड्स होने चाहिए वो हाई इंटेंसिटी पॉजिटिव इमोशन वाले वर्ड्स होने चाहिए। पॉजिटिव वर्ड्स कैसे हो सकते हैं? जैसे डेट फ्री, यानी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में डेट्स नहीं रहे, तो आप उसका कॉन्ट्ररी, उसका जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, विच इज व्हाट, कैश रिच। आपके पास कैश होगा तभी तो आप डेट फ्री हो पाएंगे ना। तो आप लिखिए अपने अफर्मेशंस में, ये लिखिए कि आपकी लाइफ डेट फ्री नहीं, आपको ये नहीं लिखना, आपको लिखना है आपकी लाइफ कैश रिच है। ग्रेट उपासना, वेरी नाइस। सो इस तरीके से आपको ये नेगेटिव वर्ड्स, पेन फ्री, आपको ऐसे नहीं लिखना कि थैंक यू that I am that my back is absolutely pain free. No, आपको ऐसे लिखना है thank you, I'm really grateful that I have a very strong back that holds me, that keeps me that keeps my body aligned and I feel fit, fine and healthy. तो इसमें एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप अपनी पूरी बॉडी को क्या मैसेज दे रहे हैं? दैट आप एकदम फिट, फाइन और हेल्दी हैं। ये तो मेरे लिए तो इतनी मैजिकल है। मेरे दिन भर में कभी कुछ होता रहता है मुझे। कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी मेरे बैक एक होने लग जाता है, कभी कुछ कहीं ना कहीं हो जाता है। तो वो सब हील करने का मुझे तो बहुत इजी तरीका लगता है ये। मैं अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देती रहती हूँ एंड इट बिकम्स रियली हेल्पफुल, इट हील्स रियली वेल। Anyway, chalo, I think it's getting very late for people. They have certain chores to do. So we'll discuss self-love very soon. And thank you so much for staying here and listening to me. Bye everyone, and have a cash-rich, super smiling, wonderful, positive day. Thank you so much. Bye. Thanks, Astha, and good luck with your move, Kritika. Thanks, Neha. Thank you so much. Thank you.